जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल and this is 506th episode of live analysis. So today being Sunday, we are going to do the weekly analysis, and as everybody is aware, this coming week has the biggest event of this year, which is budget 2022. So everybody is having some sort of expectation from the budget, whereas stock market traders are having some statistical expectation. I could see a lot of messages floating around the weekend that if budget is positive or if this happens, then that will happen and all those sort of stuff. But let me tell you that होना वही है जो लिखा होगा। कितनी भी statistics कर लो, किसी काम की नहीं है. So let us start today's discussion. It will be a little long session, maybe 1.5 hours. So we will try to take as many stock queries as possible. And इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, let me just update you a couple of things that next training is scheduled on February 12th and 13th. So anybody who is interested to join, you can WhatsApp on this number, which is given in the description box, and you can join. Once you register, you will be added in our Telegram group for a period of 3 months. And I think I will be I will take only 2 to 3 trainings by March 31st. I think only 2 trainings will be possible, because from April we will be starting with the mentorship program for existing students, which will run for almost 5 to 6 months. So during that tenure, there will not be any training. Okay, so probably this is the or maybe these coming 2 trainings are the last opportunity for you to get associated with us, and that's the only way through which you can be a part of our Telegram group. So yeah. So deadline is maybe in a couple of days. I will wind up the registration process and you can join. Okay. So let us start this discussion. So on Friday we saw US market recovering very very fantastically. S&P 500 has recovered almost 75 points. Nasdaq was up by 3%. US market on an average up by 1.5%. Whereas the European markets, they were not happy. European markets declined by more than 1%. We can see the German DAX, French CAC, and the FTSE 100. All these 3 indices, they closed almost on an average 1% down. And so that was the story of last Friday. It was a mixed bag. European markets turning red, US market just recovering from their oversold readings. As you can see, this is the daily chart of S&P 500, and still we are yet to cross the Fed commentary high, which is a critical event. So since 5 days, even after hitting such a panic level on such a high volume, US market is simply rotating up and down. It is not breaking some resistance, or it is not reversing this downtrending structure of 1 2 3. So this is quite likely to happen, and I have already said that any bounce that come in the S&P 500 shall be limited towards the 4640, or maybe at best 4700, and then we shall see another leg of a decline. Now, with all the deep technical analysis knowledge that I could utilize for assessment of this current swing, I could feel that there is a larger collapse, there is a larger decline that is coming very very soon. Now why and how I'm saying this, I have already said एक और चीज कि जब ये होगा तब मैं बताऊंगा आपको, उस वक्त मैं डिस्क्लोज करूंगा कि मैंने क्या चीज देख के ये चीज मैं कह रहा हूँ. सो देर विल बी some relief rally for the time being, but there will be another heavy decline in the coming weeks or the coming months. So for the time being, I think this bottom is very likely to be secured. I think it's a great bottom on a very large climactic volume, that too on a very large wicks. So wicks was almost 40. So ये काफी अच्छा bottom है for the time being, and some sort of rebound etc can come, maybe in terms of price or maybe in terms of a simple time wise also it can happen. So but post this I'm expecting one more round of a decline. Okay, so ये view है US market पे, and similar views I have on all the global indices. I believe the global equity market in together, in totality, is under a long term distribution. When I say long term distribution, it means that
There can be huge swings on both the sides, but overall, I think the big guys, the institutions, they are liquidating their holdings okay, for coming 3 4 5 years cycle. So similar thing we can see on the ACWI index. ये इंडेक्स के बारे में मैंने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि कैसे इस इंडेक्स ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है आफ्टर almost close to 2 years. We bottomed in the month of March, April during the Corona crash. Then there was a sharp rebound, and after that, these markets, they started to stabilize and they started to hold above this 200-day moving average, and we have seen a super duper bumper rally across the board. Now recently what has happened is, in the last 6 months, uh, these global markets in totality, they underwent distribution. You can clearly see there is a very nice head and shoulder structure also over here. Some sort of irregular head and shoulder structure is there, and we have broken, pattern wise, we have broken moving average wise, and since last 5 days we are sustaining below the 200-day moving average, which again confirms my reading of the market that there will be another assault in coming days, coming weeks, or coming months. Okay, because as you can see, these markets at times they go below the 200-day moving average for a couple of days, but they come back very strongly. If the trend is intact, if the trend has future legs, they don't sustain below this 200-day moving average, which they are doing right now, despite having a very large climactic volume and a very large VIX reading. So this suggests that there will be a third leg that will unfold in, days, weeks, or months. That is anybody's guess, but yes, we are in a distribution sort of a phase. And mind you, this is the ACWI index, which represents the complete equity market put together of entire world. Now sometimes it may so happen that a particular country, outperforms, a particular country tends to underperform. ये हो सकता है. इंडिया ने हालांकि बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस किया है पिछले 2 सालों में. सो आई थिंक देर इज अ गुड चांस दैट इंडिया विल रिमेन दी अंडरडॉग. वैसे बाकी सब भी अंडरडॉग्स ही हैं, बट आई थिंक इंडिया भी हो सकता है. ओके, दे माइट, they may choose to go long on some other country and rebalance India. So ये चीजें हो सकती है. Okay, now what about the forex market? See, forex market में यूएस डॉलर बहुत ही solid comeback इसने किया है. Last week you can see it has made a new high, and on Friday some sort of profit booking came. But I think still US dollar is firmly bullish. As far as this entire zone is secured, US dollar is bullish, and we will continue to mark this, 1 2, and this is some sort of large third which will unfold. So immediately I think US dollar will go up. I think this is the slab that I will be watching. This is the target, and this is going to remain the floor for US dollar. So with US dollar turning bullish, with US dollar probably gaining momentum or accelerating, this will definitely put pressure on a few set of companies, which is, you can say, see, mid cap to small cap companies in the emerging market space. तो हमेशा जो emerging market space है, इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ध्यान देना चाहिए. जब भी डॉलर ऊपर क्रेजीली ऊपर जाए, तो यहाँ पे इन कंपनीज के पास जो है अधिक से अधिक डॉलर डेट होता है, एंड दैट्स व्हाट starts to put pressure on their balance sheet. And because these equities are already at lofty valuations, इसमें ये होता है कि जब भी इस टाइप का मैक्रो रिस्क आता है, तो जो बड़े insiders हैं, जो promoters हैं, they could sense, that it's being overheated, so they are the first one, to leave the stocks. And then retail starts to accumulate, and it goes up, makes some some lower high, and then that's it. That's the end of the story. So ये चीज़ें यहाँ पे बहुत likely है कि ये चीज़ होंगी. Yes, we have a budget now. Budget में कुछ भी हो सकता है. They can announce anything, good, positive, good, bad, etc., ugly, सारी चीज़ें हो सकती हैं. But nevertheless, जो macro theme होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है, because that is how the market itself is looking at things. ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं बना रहा हूँ, करेक्ट, ये मार्केट बना रहा है. सो मार्केट has its own way of
figuring out its natural course of action, और वो घूम फिर के वहीं पे जाएगा. So these macro themes, they don't change. Now for India, there is one more trouble which is unfolding, but I think that is likely to uh, be limited, and that is the impact of crude oil. So USD WTI जो crude oil है, आप देख सकते हैं कि last week मैंने $91 एक इसमें टारगेट दिया था, and I think it went till 90. So $91, I think still there will be a ceiling to this. Okay, but with US dollar bullish, this can be a double whammy effect for the MCX prices and especially for the Indian markets. Okay, so अगर ये दोनों साथ में बुलिश रहेंगे तो फिर ये डबल वैमी हो जाएगा हमारे लिए. ओके, इवन इफ क्रूड स्टेज फॉर से 2 वीक्स, 14 दिन साइकिल में अगर क्रूड ऊपर ही रहा और यूएस डॉलर थोड़ा सा भी ऊपर चला गया, दैट इन टोटलिटी मींस नेगेटिव फॉर आवर मार्केट. ओके, हालांकि मुझे लगता है कि $91 के आसपास क्रूड हैज़ अ मैसिव रेजिस्टेंस. क्रूड के चार्ट को भी हम टच करेंगे तो उसमें हमें दिखाई देगा कि किस तरीके से 90, $91, $92, गिव और टेक $1 here and there, and that is a good ceiling for the time being. But अगर इसके ऊपर ही चलने लगा तो फिर I think there will be serious problem. There will be a serious problem because if it starts to sustain about this, trade about this, then I think crude will actually take a huge jump and it will topple out all calculations and statistics. So about this, I would not like to keep any target because इसके ऊपर सबसे पहला टारगेट है 112 and then 125. ये सब minimum targets हैं. So I can only imagine what will happen to these markets अगर ये explode करने लगे. मुझे अभी भी नहीं लगता कि explode करेगा, but with Russia, Ukraine, nothing is impossible in this world. Probably the corona theme is now, you see the corona theme is receding and some new theme is being created. So we are in a long term, we have entered in a cycle, in a time cycle where these large deep rooted people, they will try to keep running some agenda, keep running some theme, and the public will dance to their tune. So I think corona is now going down, and maybe this Russia Ukraine or something. I still don't believe Russia Ukraine is any topic to be discussed. It's their age old matter. वो मुझे नहीं लगता इतना कुछ issue है, but yes, something is definitely brewing, and it will come to the surface. So US dollar bullish है. This is the floor, this is the ceiling, and that's all on the US dollar. Now euro USD and British pound, बहुत ही शानदार मूव्स इसमें हमें देखने को मिले हैं. British pound, I believe, still is a better currency as of now. I think इसका downside limited है. I don't think British pound is going below the recent bottom, and that will be very nice for our GBP INR traders because you see in this week मैंने Thursday के दिन, if I am correct, let me know जो group members हैं, Thursday के दिन USD INR long, euro short, GBP short, JPY short, चार के चारों पेयर्स में करेक्ट. ओके, एंड फ्राइडे मॉर्निंग तक वी सॉ द बेस्ट मूव इन लास्ट सो मेनी वीक्स in just 24-hour window. Okay, so that is the beauty of watching this forex market, because with the help of forex you can not only gauge and profit from these individual currencies, but you will also ascertain the macro perspective which is going on in the world, because in the end it is not your equity market that drives anything. Okay, equity market is just a reaction to the forex and bond market. So it pays off to have a good अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लिक्विडिटी फ्लोज. ठीक है, सो फॉरेक्स मार्केट में देखिए थर्सडे फ्राइडे तो बहुत ही अमेजिंग था, एंड आई बिलीव दिस वीक इज गोइंग टू बी अगेन अ क्रेजी वीक फॉर फॉरेक्स मार्केट. जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेक्स में अभी ट्रेड कर रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बिकॉज दिस वीक इज फिल्ड विद लॉट ऑफ इवेंट्स. यहाँ पे सबसे पहले आपको डील करना है बजट से. ठीक है, देन यू हैव टू डील विद, आई थिंक ऑन थर्ड वी हैव द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, रेट डिसीजन. तो अगेन जो जीबीपी आईएनआर ट्रेडर्स हैं, आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है. इट इज मोर सिग्निफिकेंट देन योर बजट. ओके, सो इस दिन जनरली क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इट विल हैपन समवेयर एट 4:45 आई थिंक
और मे बी एट जस्ट शाई ऑफ 5 o'clock. सो एट दैट टाइम हमारा फॉरेक्स मार्केट क्लोज होने वाला होता है, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा, स्पाइक अप एंड स्पाइक डाउन. सो आपको ये दिखाई देगा कि 80 पैसे नीचे गया, 80 पैसे ऊपर आया, यानी आप समझ लो कि 1.5 रुपीज़ का मूव दोनों साइड हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स. सो इफ़ यू आर रॉन्ग, you're gone. If you are right, then you will make tight profits. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना. And then we have non farm payroll on Friday. So NFP है Friday के दिन, तो इस दिन भी काफ़ी significant movement होगा. And then on Monday, यानी next Monday or maybe on 9th, I think we have RBI event. So forex traders के लिए पूरा ये जो मंथ है, ये पूरा ऑलमोस्ट नेक्स्ट फोर्थ नाइट है, इट इज़ वेरी वेरी रॉकी. यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी. फॉरेक्स में वॉलेटिलिटी का मतलब है फुल ऑन प्रॉफिट पोटेंशियल वॉलेटिलिटी, फुल ऑन. वी नीड वॉलेटिलिटी इन दी फॉरेक्स मार्केट टू प्रॉफिट. सो ये बहुत ही अच्छी बात है, बट अगेन मैनेज योर पोजीशन साइज, क्योंकि फॉरेक्स इज ऑल अबाउट लेवरेज. जब तक आप ज़्यादा क्वांटिटी से नहीं काम करते कुछ नहीं मिलेगा आपको. सो मैनेज योर लेवरेज प्रॉपरली. इफ यू आर गोइंग टू विटनेस ऑल दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन डेफिनेटली जस्ट ट्रेड 1/4 ऑफ योर साइज. ठीक है, वरना फंस जाओगे बुरी तरीके से, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो कमिंग बैक टू दिस जीबीपी यूएसडी. सो अगेन डाउन साइड लिमिटेड है, अप साइड भी लिमिटेड है. फिलहाल इस रेंज में मैं देख रहा हूँ. कुछ मैं लेवल्स बता देता हूँ. यूएसडी आईएनआर अपना वही व्यू होगा 74 से 76 फॉर द टाइम बीइंग, गिव और टेक 50 पैसे हियर एंड देयर ड्यू टू बजट एक्सेट्रा, बट दिस इज द जोन. हम अभी यहाँ से यहाँ के लिए प्ले कर रहे हैं एंड वी हैव मैनेज्ड इट वेल. Then you have Euro INR. So Euro INR I think still 83 to 86 का रेंज होगा. हम अभी शॉर्ट साइड में प्ले कर रहे थे, तो आई थिंक शॉर्ट साइड को अभी थोड़ा सा आराम देंगे. बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट साइड इसमें आया है. थर्सडे फ्राइडे को सीधे 100 बिप्स की गिरावट आई है. जीबीपी आईएनआर हम शॉर्ट साइड पे प्ले करके बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं. और इसमें इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट टाइम रेंज दिया था 100 से लेके मैक्सिमम 102.5. फर्स्ट वी प्लेड फॉर द बुलिश साइड, देन वी प्लेड फॉर द शॉर्ट साइड. दोनों साइकिल एब्सोल्युटली करेक्ट हो चुका है. सो इस समय जीबीपी आईएनआर पे मैं बुलिश होना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू कीप 100 to 102 or maybe 2.25 as a range, and I will play for the bullish side. So if I get GBP INR near 100, I will start buying with 100 for 102. If I get Euro INR at 83, near 83, I will play for the bullish cycle. Okay, so इस पे हम bullish हैं, इस पे हम बोथ साइड वी कैन प्ले. बट जिस साइड एक्सट्रीम साइड आया, आप ऑपोजिट साइड के लिए आप प्ले कर सकते हो. बट आई थिंक फॉर द टाइम बिंग 83 से 86 प्ले करना चाहिए. बट इट इज अगेन बोथ साइड सॉर्ट ऑफ पेयर. एंड जीबी आईएनआर अगेन बोथ साइड खेल सकते हैं, बट एकदम नीचे आया तो फिर हम लॉन्ग साइड ज्यादा प्ले करेंगे. आई थिंक नाउ वी शुड प्ले फॉर द लॉन्ग साइड. एंड जेपीवाई आईएनआर जो है इस समय आई थिंक वी शुड प्ले फॉर द शॉर्ट साइड. अभी थर्सडे को भी मैंने शॉर्ट साइड में ही प्ले किया था. सो आई बिलीव इसका रेंज होगा मे बी 64.5 से लेके आई थिंक 67.5 मैक्सिमम, यही रेंज होना चाहिए. इस समय मैं थोड़ा सा सेल ऑन राइज करूंगा, यानी थोड़ा सा और राइज आए तो मैं वापस शॉर्ट करूंगा. सो इन दिस आई वुड लाइक टू बी अ सेलर, सेल ऑन राइज, बट अ गुड सेल ऑन राइज. ओके, थोड़ा decent sell on rise. So sell on rise on JPY INR. Okay, and we are sort of bullish on GBP INR, and range bound to bearish and bullish both on Euro and USD INR पे we are bullish. ठीक है. So I think let's wind up forex. forex पे काफी डिस्कशन हो चुका है और ज्यादा लोग forex ट्रेड नहीं करते, सिर्फ ग्रुप मेंबर्स ही ट्रेड करते हैं. So that's the view on forex. All right. Okay. Now let us have a look at the commodities market. So एक बार commodities की तरफ आते हैं और सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे. तो कितने लोगों को नेचुरल गैस की पूरी एनालिसिस पसंद आई है, एक बार आप बता दीजिए. हाउ मेनी पीपल डिड एक्चुअली बिलीव दैट नेचुरल गैस एनालिसिस विल कम ट्रू. 282, 282 से 362. ठीक है, 282 से 362 और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ. एक राउंड यहां भी आया था, एक राउंड यहां भी चालू हुआ था,
सो आप देख सकते हो कि एक राउंड यहाँ मैंने करवाया था, ठीक है, बट अगले ही दिन इस पे रिवर्सल हो गया, फिर हमने यहाँ पे एंट्री किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर ये थोड़ा सा ट्रैप हो गया, फिर हमने यहाँ एंट्री किया अगेन, ठीक है, एवरेज भी मैंने करने को बोला था, फ्रेश एंट्री भी करने को बोली थी, ये लेवल एक बार रीटेस्ट होगा राइट साइड में, ये भी डिस्कस हुआ था, एंड देन सोनिक बूम, ठीक है, एब्सोल्युटली सोनिक, एंड एंटायर यूट्यूब ट्विटर कहीं भी किसी ने भी इस टाइप की एनालिसिस नहीं की है, पीपल आर ओनली बिजी सेलिंग चीप ऑप्शंस. So the point is, that is the power of being a multi-asset trader. कि बस look out for solid opportunities. वहां पे बस आपको इन्वेस्ट करना है, अपना रिस्क देख लो, पोजीशन साइज देख लो, स्टॉप लॉस लगाओ, एंड जस्ट लेट इट राइड, ठीक है. सो ये चीज देखो, ये चीज आपके सामने आज की डेट में इतनी चीजें ट्रेड करने को, क्रिप्टो, यहाँ पे तो ना मतलब रियली इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं क्या बताऊं, देर आर लाइक सो मैनी मैनी अपॉर्चुनिटीज इन क्रिप्टो, ओके, and then you have commodities, then you have forex, then you have stocks, then you have index. सो जितने अब जो नए लोग बाजार में आ रहे हैं, अब हमारा हो गया, ठीक है, जितने नए लोग जो आ रहे हैं बाजार में, यू हैव रियली, आई मीन, अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो तो आई फील सॉरी, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल टाइम फॉर न्यू एज ट्रेडर्स टू एक्चुअली मोनेटाइज, ठीक है. एनीवेज, सो दिस नेचुरल गैस अगेन very solid up move, and because we have come here for the second time, we are going to blast through the roof, and I won't be shocked to see natural gas going all the way till 440 minimum. So this is the bucket, ये एक बाल्टी है, इस बाल्टी का ये एक बेस है, और ये हमारी पार्टी चल रही है, ठीक है. तो ये आपका स्पेस था, और ये यहाँ पे दूसरा स्पेस बनेगा. सो वी आर एट 362, एंड आई थिंक 440 450 शुड बी डन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट. अब अगर इसमें कोई अच्छी डिक्लाइन आती है तो आप वापस एंटर कर सकते हो, अगर आपने बुक कर लिया तो भी ठीक है, नॉट बैड. And sometime later on we will again see some structure, some consolidation, and again we can play fine. So a very great trade, and really superb, and this is also a sort of a cup and handle. हालांकि इन सब चीजों को ऐसे नहीं हम देखते, हम उसको कहीं और देखते हैं, बट nevertheless, so that's the natural gas. And let us talk about crude oil. So crude oil की अगर बात करें तो अभी भी क्रूड ऑयल पे मैं जो है बुलिश हूँ. एक्चुअली मैं पहले बेरिश था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो मैं बुलिश हूँ, बट स्टिल आई फील दैट $91 इज अ सीलिंग. हालांकि शॉर्ट साइड अभी नहीं एंटर करना चाहिए, बिकॉज वी हैव ओपेक मीटिंग आई थिंक ऑन ट्यूसडे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्यूसडे के दिन है. सो आई थिंक ये पूरा विंडो अभी भी ओपन है दोस्तों, 6,800 7,000, ये पूरा विंडो ओपन है, ओके. और प्लस इस वीक में आपको एमसीएक्स ट्रेडर को स्पेशली सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बजट है, बजट के वजह से यूएसडी आईएनआर में फ्लक्चुएशन होगा, यूएस डॉलर ऑलरेडी फ्लक्चुएट कर रहा है, सो इट विल बी रियली अ मेस्ड अप सिचुएशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो नंबर वन, कि आपको प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड ट्राई टू फैक्टर इन ऑल दीज वेरिएबल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट क्रूड ऑयल, आई थिंक स्टिल क्रूड जो है बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, तो मैं समझता हूँ थोड़े दिन क्रूड कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकता है. प्रॉब्ली अब ओपेक मीटिंग है तो इट कैन स्पाइक अप और स्पाइक डाउन. ओवरऑल आई थिंक वी आर गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, एंड प्रॉब्ली देन टॉप आउट वेरी सून, ओके. सो मुझे नहीं लगता कि क्रूड 91 के ऊपर सस्टेन करेगा. आई विल बी वेरी शॉक. आई थिंक इट विल एंटर सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके. अगर एमसीएक्स की मैं बात करूं तो अभी भी मैं समझता हूं कि ये जो लेवल है 6450, ये एक अच्छा सपोर्ट है, एंड आई थिंक 6450 के ऊपर पूरा विंडो ओपन है 6850 तक का, और इसके नीचे अगर जाता है तो थोड़ा एक डीपर करेक्शन आ सकता है 6200, ओके. सो एक बहुत ही बड़ा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज बन चुका है बॉस. सो यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल, अगर आप कहीं भी गलत साइड में फंस जाओगे तो 600-700 पॉइंट आपको ड्रैग कर दिया जाएगा. सो बी वेरी केयरफुल, ओके. ओवरऑल आई बिलीव 6200 इज अ मैसिव सपोर्ट. जब तक 6200 ब्रेक नहीं होता है, even if it drops like this, it will rally like this, creating a 1 2 3, okay, w shape 1 2 3 pattern like this, okay. So at least 1 2 3 चाहिए before any sort of decline starts. तो ये क्रूड में बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बट आई थिंक सब लोग नहीं खेल पाएंगे, प्रोफेशनल्स के लिए ही है ये.
सो अगर आपको ट्रेड करना है 6450 को ध्यान में रखिए, 6450 सॉर्ट ऑफ वीकली मॉब लेवल आप कंसिडर कर सकते हैं। अबाउट दिस बुलिश फॉर 400 पॉइंट्स, below this bearish for 6200, 6200 being the base for 6850. Okay, that's it on crude oil. गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की धज्जियां उड़ गई हैं, और मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। व्हाई? बिकॉज 48,800 ये लेवल और ये जोन और ये चार्ट, ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं दैट दिस इज अ मैसिव रेजिस्टेंस फॉर गोल्ड। नाउ यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि ये अगले ही दिन एक गैप डाउन से खुल गया। अगर ये यहाँ मिल गया होता तो इसे जो है बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इट कुड नॉट कम इन दी हैंड। नेवरदलेस बहुत ही अच्छा हुआ कि एटलीस्ट यू आर ऑन द राइट साइड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो गोल्ड में आप देख सकते हो दोस्तों, सम सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर, बट आई थिंक स्टिल गोल्ड प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को। ओके, ओवरऑल 40, लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि 48,800 इज द सीलिंग एंड 47,600 इज द फ्लोर। इस वीक के लिए भी लगभग मैं कुछ ऐसा ही कहना चाहूंगा, बट आई बिलीव फॉर द टाइम बीइंग गोल्ड till 48,100 is not crossed. Okay, I think it can move little lower with 47,200 as a ideal support on MCX, with a false move at 47,000। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये इसे एक बार ट्रिप करना चाहेगा, बट आई थिंक ये सस्टेन कर लेगा और एक दो दिनों में बाउंस बैक कर लेगा। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, I think this is a good zone and this is a massive resistance for the time being. Once we bottom out here, then I think I will like to play gold again for again that 1,500 points. ठीक है, सो कुछ ये है, कुछ इस तरीके से ये प्लान है। एज आई सेड, ये पूरा वीक बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है, कलरफुल है। सो संभाल के आपको काम करना होगा। प्लस आई थिंक देर विल बी सम न्यूज़, डेफिनेटली सम न्यूज़ ऑन गोल्ड इम्पोर्ट ड्यूटी इन द बजट। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बेयरिश स्ट्रक्चर है। ओके, गोल्ड में लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश हूँ, बट आई थिंक विद इंडियन बजट दिस मूव हैज़ हैपेंड, एंड प्लस यूएस फेड जो है रेट हाइक साइकिल करने वाला है। ओके, सो जब तक यूएस का ये न्यूज़ बैक ट्रैक नहीं होता, क्योंकि फेड जो है ना पूरा फर्जीवाड़ा है। ठीक है, फेड जो है ये फर्जीवाड़ा है, ये देखेंगे कि मार्केट सारी क्रैश हो रही है तो यू टर्न ले लेंगे। ठीक है, दे आर नंबर वन दिल्ली का सीएम टाइप्स। सो यहाँ पे आप समझ जाओ कि थोड़ा सा सावधानी रखनी है। एंड आई थिंक फॉर द टाइम बिंग 48,100, 47,200 ये इस तरीके के कुछ लेवल्स हैं, और दैट्स इट। सिल्वर पे कोई व्यू नहीं है फॉर द टाइम बिंग। कॉपर में अगेन सेम रेंज रोटेट हो रहा है, 765 के जोन में रेजिस्टेंस है। आई थिंक नाउ कॉपर हैज ब्रोकन। आपको याद होगा कि थर्सडे की स्ट्रीम में, थर्सडे की रात को मैंने आपसे बताया था कि दोस्तों कमोडिटीज विल नॉट सर्वाइव the bullishness that they are suggesting right now, because China is going holiday। China जो है लूनर हॉलीडे पे जा रहा है और वो आएगा 25 फेब को। सो पूरा जो मंथ है ये चाइना जो है ऑलमोस्ट शट डाउन, या शट डाउन नहीं कह सकते, बट यू नो एक पीक प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, एंड वी आर हेडिंग इनटू अ नेगेटिव न्यूज और विद अ बुलिश प्राइस एक्शन। इसका मतलब ये है कि इफ वी डोंट ब्रेक आउट वी विल ब्रेक डाउन। सो कॉपर पे जो है मैं बेरिश हूँ दोस्तों। कॉपर आखिरी सपोर्ट पे है, आप देख सकते हो। एवरी टाइम इन लास्ट 1 ईयर वी हैव प्रोटेक्टेड दिस ट्रेंड लाइन, बट सबका एक आखिरी समय आता है। मेरे ख्याल से कॉपर का समय आ रहा है। सो कॉपर में यहाँ पे गिरने के पहले एक हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर भी है, which is again suggesting that there was all distribution happening in the last fag end of this entire move. Plus again, this is again looking like a larger head and shoulder, so इसके implications जो हैं काफी गहरे होंगे कॉपर पे। इन शॉर्ट, सेल ऑन राइज का माहौल बनाए रखना है, तो आई थिंक कॉपर एनी राइज टुवर्ड्स 747, 745 ये सेल ऑन राइज। ठीक है, सो शॉर्ट करेंगे 745 के स्लैब में। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, 760 के ऊपर का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एक ही टारगेट दूंगा, 705 पहला टारगेट एंड देन 685 दूसरा टारगेट। सो ये बड़ा ट्रेड है, आप स्ट्रक्चर करिए, प्लान करिए, एंड इफ यू फील suitable then only you can play for this short। it will be a big trade if this works, it will be the next natural gas। ठीक है, सो ये हो गया कॉपर। और इसी तरीके से बाकी मेटल्स को तुरंत डिस्कस करते हैं, देन लेट अस मूव टुवर्ड्स स्टॉक। सो
निकल में देखो, निकल में गेम ओवर हो चुका है। आई थिंक पंप एंड डंप का ये सिलसिला हो चुका है। एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट करूंगा मैं। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, आई थिंक दे आर स्टिल गुड, दे आर स्टिल गुड, बट आई थिंक सम पुल बैक करेक्शन इज नीडेड। सो एल्यूमिनियम मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म में। एंड एल्यूमिनियम में अगर कोई एक अच्छी करेक्शन आए 225 तक, देन आई थिंक इसे बाई किया जा सकता है। एल्यूमिनियम स्टिल मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम एक और न्यू हाई बनाएगा। मे बी दैट विल बी a flush, a swing failed pattern, and then a reversal. But I'm still bullish. I'm still bullish on aluminum. अगर ये थोड़ा नीचे मिल जाए somewhere 225 to 20, I think that will be a very good level to go long in aluminum for a certainly a new high sort of trade. So ये व्यू है एल्यूमिनियम पे। इस वक्त कोई ट्रेड नहीं है, 225 का वेट करेंगे। लेड वहीं का वहीं है। अगर इस ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं मूव की है तो वो है लेड। ठीक है, तो ये एक अलग ही एक दास्तान है, ये एक पहेली है, मिस्ट्री है। ये कब मूव करेगा मुझे भी नहीं पता। शायद महाकाल आएंगे तभी ये मूव करेंगे। जिंक की बात करें तो जिंक ने देखो लास्ट वीक जो है 301 के आसपास आ चुका है। जिंक अभी भी मैं बुलिश हूँ। आई थिंक जिंक कैन डू 310। और पहले मैंने बाइंग के लिए सजेस्ट किया था 290 के स्लैब में, तो एक अच्छा 10 पॉइंट का मूव आया है। आई थिंक फॉर दिस वीक विद कॉपर टर्निंग बेरिश, लेट अस अवॉइड दीज मेटल्स। let us wait for some solid corrections to happen and then only venture out. कोई शॉर्ट कॉल नहीं है एल्यूमिनियम, लेड, जिंक पे, कोई लॉन्ग भी नहीं है। आई थिंक बेस्ट ट्रेड शॉर्ट साइड में आपको जो है कॉपर दे रहा है। प्रॉबेबली निकल में आ सकता है बट अभी कुछ कह नहीं सकते। तो एक अच्छा ट्रेड आपको कॉपर में है, नेचुरल गैस में है, क्रूड में है, एंड गोल्ड में भी आ सकता है। ठीक है, सो कपल ऑफ कमोडिटीज आर लुकिंग गुड एज ऑफ नाउ। जिंक में लेवल बता देता हूँ, अगर 285 आएगा तो हम डेफिनेटली बाई साइड में प्ले करेंगे। सो जिंक के लिए 285, लेड वहीं का वहीं है, आप बाय कर सकते हो अगर आपको करना है। एल्यूमिनियम 225 के आसपास। ठीक है, और निकल में अभी कुछ नहीं करेंगे। कॉपर बता चुका हूं मैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल। काफी एमसीएक्स ट्रेडर्स जो हैं वेट करते हैं, तो मैंने आपके लिए स्पेशली सारी कवरेज यहाँ पे जो है कर ली है। अब बात करते हैं हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं ये बेताब बैठे हैं कि अब क्या होगा। तो देखो ऐसा है कि धज्जियां उड़ने वाली है, तैयारी कर लो, पैराशूट पहन लो। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर वी ऑल फॉल डाउन अगेन। नाउ व्हाई? बिकॉज ऑफ the same technicalities that I have explained before. There is no climactic volume, no selling capitulation despite breaking all these levels. तो इसका मतलब ये in short कि BTC जो है मुझे नहीं लगता 40 के ऊपर इस समय जाएगा। 38 ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है। BTC 38, 38.5 ऑलरेडी ट्रिप कर चुका है। And these are the last levels, last support from where we have fallen 40,700. So I think at best, जब तक हम इस स्ट्रक्चर के बाहर नहीं आते दोस्तों, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू मेक अ वेज एंड यू अगेन स्टार्ट टू फॉल। आई थिंक बीटीसी के लिए सबसे परफेक्ट लेवल अगर कुछ होगा तो वो होगा 27,500 इन द नेक्स्ट 45 डे साइकिल। 27,500, ये मेरे ख्याल से अगर मुझे बीटीसी यहाँ मिलेगा तो फिर on any sort of reversal I will be a buyer in BTC। तो मेरे ख्याल से that is a very very super duper level। 27,500 फिलहाल 40,700 के ऊपर मुझे नहीं लगता। सो इफ आई सी BTC वीकनिंग फ्रॉम हियर, आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट साइड करना चाहिए अपने को। एंड वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग 10,000 पॉइंट ड्रॉप कमिंग। नाउ एक चीज ध्यान में रखिए, ऑलरेडी एक बहुत बड़ी टेकलाइन इसमें हो चुकी है। वी कॉल्ड दिस टॉप आफ्टर दिस फॉल्स ब्रेकआउट, एंड सिंस देन वी वर बेरिश। पहले ये हमने पकड़ा, then there was this capitulation, then again this got hit over here at 52, and then the next wave, and then this। okay, so यहाँ पे बहुत ही अच्छा टेक्निकल्स चलता है। तो अगर आप पूरी स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें ट्रेड्स मिलेंगे। ओके, आई स्टिल बिलीव वी हैव ब्रोकन मैसिवली ऑन द बिटकॉइन। ओके, सो जब तक ये बिटकॉइन का पूरा स्ट्रक्चर रिवर्सल नहीं होता दोस्तों, एक ही पॉसिबिलिटी है दैट वी आर अंडर सम लॉन्ग टर्म रीएक्यूमुलेशन और लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्या कहा मैंने? लॉन्ग टर्म। ये जितने भी क्रिप्टो वाले हैं ना, ये आपके लिए आज मैं मूड में हूँ, इसमें ध्यान से बता देता हूँ। कुछ चीजें दिख गई बोलते बोलते, इसलिए बता रहा हूँ दैट वी आर ईदर under a long term reaccumulation phase or a long term distribution phase on the BTC। Now what is very surprising and what is good about this chart from a long term perspective is that there was no spike in volume when we made a
new high. Okay, so that is something which is, I would suggest, very good, क्योंकि अगर ये लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होता देन डेफिनेटली ये जो जगह है, ये जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है, सेलर वेलर सब बेच के भाग गए होते. सो आई थिंक the long term guys, they are still holding up. The institutions, they will definitely capitalize on these capitulation move. I think there will be a lot of billions of buy orders sitting at this slab in next 45 days cycle. Okay, so BTC may, in short, we have broken this head and shoulder structure over here. So this should translate into more massive downside. But I think 27.5 should be savior for the time being. ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ से अगली ट्रिप की शुरुआत होने वाली है in couple of days, maybe in next week or so. So keep an eye. Anything above 47, yani anything, if we breach this structure on the higher side, then everything changes. उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे some sort of definite एक bottom बना है and then some new leg और new cycle of 10 to 20,000 has started. उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, so in short, long term reaccumulation के chances ज़्यादा हैं BTC में, but लॉन्ग टर्म बाइंग 27,500 या तो यहाँ कहीं होगी एक्सट्रीम लेवल पे 5,000 7,000 के लेवल पे, या फिर या फिर कुछ नहीं, यही होगा, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा. ठीक है, वंस वी मीट द हेड एंड शोल्डर टारगेट एट 5,000 ईदर हियर और 27,500. अगर अगले साइकिल में बीटीसी यहाँ से घूमा और कुछ महीनों में इफ इट स्टेजेस बैक अ वेरी गुड रैली, तो आप समझ जाना ये लॉन्ग टर्म रीएक्यूमुलेशन है. ठीक है, सो आज बहुत ही अमेजिंग एक एनालिसिस मैंने बीटीसी पे करी है एंड आई होप ये आपको पसंद आए. सो 40,700 ये लेवल वॉच करिए, यहाँ से शॉर्ट करेंगे. इथेरियम की बात करें 2620 इस समय ट्रेड कर रहा है. इथेरियम पे भी सेम व्यू है, बट आई थिंक इथेरियम हैज सम गुड रूम टू कवर. आई थिंक 2800 वगैरह इथेरियम जो है जा सकता है. ओके, 2800 वगैरह जा सकता है और फिर मे बी 2950 भी जा सकता है, क्योंकि इथेरियम में थोड़ा रूम है एंड प्रॉब्ली आफ्टर दैट इट विल ड्रॉप. ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम है इथेरियम और बीटीसी का. ठीक है, बाकी क्रिप्टोज को कवर करने का आज टाइम नहीं है, हम किसी और दिन कवर करेंगे. सो नाउ लेट अस फाइनली कम एट अवर स्टॉक मार्केट. ओके दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए. ठीक है, लाइक डिसलाइक जो करना है करो, ठीक है, पर करो. And next training is on February 12th and 13th. We will learn so many things about technicals, price action, how I look at market psychology, how to unlearn. The first and foremost thing when you go in any training is you should learn how to unlearn first. Okay, because पूरा garbage और कचरा भरा है लोगों के दिमाग में, तो पहले उसकी साफ सफाई करके फिर वहां पे नए ज्ञान का पौधा लगाओ. ठीक है, so Feb 12th and 13th, and we will wind up the registration in next few days. Okay, now coming back to this, we have a market. We have a market which is called Nifty, Bank Nifty, जो फ्राइडे के दिन बहुत ही सुंदर तरीके से डिक्लाइन हो गया. ठीक है, क्यों डिक्लाइन हो गया और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मॉब लेवल होगा, बजट वगैरह, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं. लेट मी जस्ट ब्लॉक दी हैकर्स फर्स्ट, नहीं तो ओके. कुछ लोग अभी क्वेरी पूछ रहे हैं, स्टॉक क्वेरी, तो होल्ड योर हॉर्सेस. अभी हम इंडेक्स पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद, और समय कम होगा तो सुपर चैट आप करेंगे तो आपकी मैसेजेस जल्दी ले सकते हैं हम. ओके, सो let us first have a look at the macros first. So on Friday we saw the mid cap index up by 1.5%, small cap almost 1%. Okay, so I think ये तो ठीक था, यहाँ पे एक अच्छा एक थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला है. ओवरऑल क्या है, ओवरऑल आई बिलीव स्टिल वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, लार्जर स्विंग्स आएंगी, ह्यूज अप मूव, ह्यूज डाउन मूव. ओवरऑल वी आर इन सम सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द ब्रॉडर मार्केट्स ऑफ NSE BSE. ठीक है, नाउ यहाँ पे अब एक अच्छी चीज हो रही है मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में. द 200 EMA इज नाउ कमिंग वेरी क्लोज. नाउ जब भी ऐसा होता है कि दैट वी आर डूइंग सॉर्ट ऑफ अ टाइम करेक्शन. ओके, वी आर डूइंग सॉर्ट ऑफ अ टाइम करेक्शन एंड द एवरेजेस दे कैच अप, ये हमेशा एक अच्छी निशानी होती है, ये हमेशा एक अच्छी निशानी होती है. सो इफ आई लुक दिस एंटायर चार्ट, ये इस चार्ट को मैं
अगर एक कंप्रेस करके देखूं, कंप्रेस करके मतलब ये है कि ये सारे वेव्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप अगर आप करके देखोगे तो हमें ये दिखाई देगा दैट इन द लास्ट 6 मंथ्स और वॉट एवर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स हैं, 4-5 महीनों में ये हुआ है कि मार्केट एक सॉर्ट ऑफ डिक्लाइन तो इसने किया है जो कि लगभग 13% की करेक्शन है. आइडियली 13% इज अ गुड करेक्शन इन द मार्केट. ओके, not 13 but say 12% is a good correction in the market. But by with the passage of time, what has happened is the 200-day moving average, it got uh, room to catch up with the prices. So now this average is almost here, almost here. ओके, सो अब यहाँ पे ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है कि अब बजट वगैरह है, सो सम पैनिक विल हैपन, big candles will be formed, and during the budget we are going to hit this 200-day moving average. Let me tell you this. Okay, during the budget volatility, there is a 99% chance that Nifty, Bank Nifty, small cap, all these guys, they will in some volatility they will hit the 200-day moving average, thereby fulfilling that criteria. Because US market has done, French market has done, UK has done, Japanese Nikkei is already trading below, Hang Seng is already below, your वॉट एवर जो भी मार्केट्स हैं ये सब कर चुके हैं, सिर्फ मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान, यही बाकी है. ठीक है, सो यहाँ पे हमें जो है ये चीज का ध्यान देना है दैट दिस इज गोइंग टू हैपन इन सम सॉर्ट ऑफ अ पैनिक लाइक दिस. ओके, बट व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट, वो एक एक्चुअली $1 million क्वेश्चन है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे समझना जरूरी है. एक चीज, बजट के दिन, बजट के समय, प्लीज डोंट ट्रेड, या मे बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट रिमेंबर कि देयर इज लाइफ प्री एंड पोस्ट बजट ऑल्सो. ठीक है, सो डोंट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ. अगर कुछ हाथ लगे बड़ा तो उसे कंजर्व कीजिए, से थैंक यू टू गॉड एंड सेव इट, but don't play unnecessary. So something very unique that this is going to happen, but I think इसके बाद जो भी चीज होगा ना उस पे मेरा ज्यादा ध्यान होगा. तो मेरा बजट पे ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान ये है what happens in this case. ओके, इसके बाद ये मार्केट किस तरीके से अगला कैंडल बनाता है ऑन डेली चार्ट और मे बी ऑन वीकली और ऑन योर वीकली चार्ट. ओके, नाउ सपोज इफ वी गेट. और हाँ, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, मुझे लगता है ना बजट नॉन इवेंट होगा. ओके, आई फील बजट दिस टाइम द बजट इज अ नॉन इवेंट थिंग. व्हाई? बिकॉज दैट इज व्हाट मार्केट इज टेलिंग मी. द मार्केट इज टेलिंग मी दैट देयर विल बी a wick like this, there will be a wide range candle like this, and that's it. उसके बाद budget non event होगा. Okay, unless something very very unique comes, good or bad, I think budget will be non event, but with a wide range candle like this, which touches the 200-day moving average. Okay, so जब तक वो नहीं होगा उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते. हाँ, अगर उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू करता है तो दो चीजें मैं देखना चाहूंगा. नंबर वन, ओके, नंबर वन, if we hit like this and we start to move up, अगर ये मूव साइलेंट है, स्लो है, वीक है और सेक्टर रोटेशन हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि ना मार्केट में एक मैसिव करेक्शन आएगा, मे बी समवेयर इन मार्च और समवेयर. ओके, मे बी इन दिस सॉर्ट. तो ये एक चीज देखना है कि पोस्ट बजट इफ वी बॉटम एट बजट एंड रैली, इट शुड बी फास्ट एंड फ्यूरियस. ये क्राइटेरिया मैं देखना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू सी दिस सिग्नेचर ऑफ द मार्केट. इफ otherwise happens that on budget, during budget we bottom, we are still bullish, we are still moving, but if we are not fast and furious, if we are slow, then it means market is heavily under distribution and there will be real breakdown in markets after maybe one expiry or maybe 15 दिन 20 दिन जो भी. तो ये फास्ट और फ्यूरियस देखना है किस केस में, बॉटम के केस में. दूसरी सिनेरियो, अगर हम यहाँ बॉटम करते हैं एंड वी स्टार्ट टू ब्रेक डाउन, तब तो फिर कोई गेस करने की जरूरत ही नहीं ना. फिर इट मींस दैट ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है डिस्ट्रीब्यूशन थी एंड वी आर गोइंग टू कोलैप्स जस्ट लाइक दी अदर मार्केट्स. जब आपका ACWI एक हफ्ते से नीचे इसके है तो आप कैसे ऊपर रहोगे? सूनर और लेटर यू हैव टू अलाइन, करेक्ट. आप ऐसे समझो कि ये एक मेन इंडेक्स है, जब ये खुद नीचे है और आप एक छोटे इंडेक्स हो तो आप कब तक ऊपर रहोगे? सूनर और लेटर यू हैव टू
अलाइन विद दिस, ये आपके लिए अलाइन नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग, आपको इसके साथ अलाइन होना है। इसलिए ये दो बिहेवियर हम देखेंगे। बॉटम तो चलो बन जाएगा, ठीक है, मोस्ट लाइकली होगा, इस तरीके से होगा, मार्केट बुलिश हो जाएंगे वगैरह वगैरह, मे बी लास्ट ईयर का वो रिपीट हो जाए, इट वाज हियर आई थिंक, या ओके। बट फास्ट एंड फ्यूरियस होना चाहिए। अगर स्लो है तो गया, फास्ट एंड फ्यूरियस है तब अच्छा है, बिकॉज दैट वुड मीन कि आपका स्मॉल कैप इंडेक्स सबसे पहले न्यू हाई बनाएगा, योर मिड कैप इंडेक्स विल मेक अ डबल टॉप फ्लश, ठीक है, ये भी बता रहा हूँ, मिड कैप इंडेक्स डबल टॉप फ्लश करेगा, ठीक है। और बाकी जो मार्केट्स हैं, अगेन निफ्टी वगैरह जो है, ये भी आ जाएंगे अपने प्रीवियस हाईज के आसपास, बट आई डोंट थिंक कि वहां पे सस्टेन करेंगे, अगेन देयर विल बी सोल्ड आउट। और बैंक निफ्टी तो आई डोंट थिंक कि ऊपर 39 के ऊपर इतना कुछ खास जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी चीज हुई कि यू डोंट बॉटम, देयर इज नो बॉटम, नो बॉटमिंग, एंड यू आर गोइंग डाउन, देन एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, ओके। सो ये चीज मुझे देखना है, मुझे ये नहीं देखना है कि बजट पे क्या हो रहा है, मुझे ये बिहेवियर देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि इसके बाद आने वाले 3 महीने उसी के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये कारक होगा आने वाले 3 महीने के लिए, okay, so people will be flocking on budget event to trade, whereas I will look for, these signatures, these behavioral traits of the market, so that, okay, for next 90 days I will be in control of the market, okay। एक दिन खेल के क्या मतलब है, 90 दिन खेलो ना, अंडरस्टैंडिंग, यूटिलाइज वन डे टू प्ले द नेक्स्ट 90 डेज। सो ये एक कुछ मैक्रो एक पर्सपेक्टिव लेके हम चल रहे हैं। निफ्टी पे आते हैं फिलहाल वेरी क्विकली, अब बात करेंगे और फटाफट स्टॉक क्वेरीज लेंगे। सो मंथली चार्ट, if you see the monthly chart, we are doing nothing, we are simply going sideways for the past 3-4 months, we have approached a critical time and price level। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्केट आने वाले 1-1.5 महीने के बाद से कोलैप्स करेगा और हम वापस चले जाएंगे 14,000 के आसपास। अगर ये रीएक्यूमुलेशन है तो मार्केट इस फ्लैग ब्रेकआउट करेगा एंड वी विल गो टुवर्ड्स 19,600 20,000 लेवल, दैट शुड बी द फुल एंड फाइनल टारगेट, ओके। अब अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो देर इज अ ग्रेट चांस दैट वी आर गोइंग टू मेक अ डब्ल्यू शेप बॉटम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड वी कैन रैली हार्ड, ओके। बट प्लीज बी केयरफुल, ओके। ये स्टार्ट करके इस तरीके से ना, ये अगर बन गया चैनल, यानी मुझे जो लग रहा है, तो फिर आप समझ जाओ ये बहुत ही गंदा डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो इस वीक हम फिलहाल एक लेवल के साथ चलते हैं एंड लेट अस नॉट थिंक अहेड ऑफ टाइम। डेली चार्ट की बात करें तो वी आर क्लोजिंग एवरी डे, वी आर क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस डे बॉटम ऑन डेली चार्ट। कैंडल स्टिक में आपको बुलिश दिखेगा, डेली चार्ट, लाइन चार्ट जो है ये बेरिश है। फ्राइडे के दिन देखिए क्या हुआ, फ्राइडे के दिन वी हिट दैट 17,400 लेवल, इसकी हमने डिस्कस किया, हमने किया था कि 17,400 जो है ना, दैट इज अ वेरी ग्रेट लेवल, okay। And on the 5 minute chart, upon reaching that level, we started doing sideways action, and then the decline happened, very nice breach of the VWAP and then gone, total gone। और बैंक निफ्टी में तो अमेजिंग, बैंक निफ्टी वाज रियली सुपर डुपर फॉल। सो अब क्या सिचुएशन है, बहुत ही सिंपल है, जैसा लेवल मैं बता रहा हूं अगर आप उसको फॉलो कर लें तो ये वीक बहुत ही आसान होगा। सी, इट्स वेरी इजी, we are going to keep okay, we are going to keep 17,200 as a weekly mob level, okay। So 17,200, above this we are all bullish. Let me just write it down. The weekly make or break level will be 17,200. Above this we are bullish for 17,850 as the first target, and second target as 18,300, just ahead of this. So this is your one, this is your two, probably third somewhere here। So 18,300 and 18,600 इस टाइप से हम लेके चल सकते हैं, okay। Now below this we are bearish, okay, we are bearish, and first target is 16,600, and second target will be retest of the 200 DMA, which is 16,300। And if anything bad comes and if we are tripping down, then there is no support but to go and test this entire slab, which is 15,800 level, ठीक है। नाउ यू विल से कि सपोर्ट लेवल तो कोई भी दे देगा, होगा क्या, तो होगा वही जो लिखा होगा, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बट फुटप्रिंट को देखना, फ्राइडे की कैंडल को देखो, वेडनेसडे थर्सडे इनसाइड बार,
फ्राइडे ब्रेकआउट होता है और इनसाइड बार बुलिश ब्रेकआउट होता है, वेरी नाइस रिवर्सल फ्रॉम अ गुड लेवल, एंड देन इट इज अ फेलियर, यानी इसकी रिवर्सल अगर हो गई ऊपर में तो मार्केट गया ऊपर, और अगर ये कंटिन्यू हुआ तो मार्केट नीचे, वेरी वेरी सिंपल। सो कल के दिन, फॉर टुमारो, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, watch for 17,200 till we are below 17,200, play for the short side, and we are most likely to reach 16,800 and probably maybe 16,600 etc. कल ही, और अगर कल गैप अप खुलता है 17,200 के ऊपर, गैप अप खुलता है फुल ऑन लॉन्ग, लॉन्ग करो आराम से, आपको 17,600 500 वगैरह के लेवल्स मिल जाएंगे। सो कल का दिन इजी है, मंडे easy, depending on where you open. Gap up above 17,200 calls for a long trade till 17,004, 17,006, and all these levels over here. If there is a gap down opening, then it calls for a short trade with stop loss above 17,200 for 16,600, 16,400, etc. on the downside. So Monday is easy for index. Tuesday again will depend कि कल कहाँ क्लोज होता है, क्या होता है। तो कल के सेशन में आप वॉच कीजिएगा, ट्यूसडे का दिन भी हम गेज कर लेंगे कि कैसे ट्रीट करना है ट्यूसडे को, क्योंकि आई थिंक ट्यूसडे विल बी या बजट, राइट, ओके। एंड पोस्ट बजट तो फिर चीजें सिंपल हो जाएंगी, वंस द इवेंट इज आउट ऑफ देयर। बट ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे ध्यान देना है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है 17,200, 17,850, नीचे में 16,600 और 16,300, ये बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। सो दैट्स ऑल ऑन निफ्टी फॉर टुडे। कल हम इस पे और चर्चा करेंगे। एक बार बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं, एंड आई थिंक बैंक निफ्टी इज वेरी इजी फॉर दिस वीक। व्हाई? बिकॉज लास्ट वीक वी मेड अ neutral candle with a very wide range bar. It means simply that above this it will be a sort of a flag breakout, and we will mostly trip in this entire area. So बैंक निफ्टी का टेक्सचर बहुत ही क्लीन है, इसमें कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। bulls and bears both are equally strong in this index. So for this week I would like to keep this 37,800 as a weekly mob level. So weekly mob level for bank nifty spot will be 37,800. Above this we are bullish. First target we would like to keep as 38,800, and second target could be 39,800. Okay, 1,000 points up move like this. This is a massive resistance, 39,800 slab, massive resistance, very very strong. I'll be very surprised that Bank Nifty trades above this even in bullish case. Okay, I think this is a massive resistance going forward. Still, ये दो लेवल्स आने चाहिए, ठीक है। एज यू कैन सी दिस इज अ डिमिनिश्ड बॉडी। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे हैं, यू नाउ यू कैन कनेक्ट, जो मैं प्राइस एक्शन में सिखाता हूँ कि कैसे कितना इजी होता है गेज करना। ओके, एंड बिलो दिस वी आर माइल्डली बेरिश फॉर वन ट्रिप टुवर्ड्स say 36,800, and if we break that, then certainly we are going towards 35,800. Okay, so I think ये पूरा एक slab है, 35,800 and this 39,800, big 4,000 points, and with Friday's closing almost that level, that zone is the pivot. So above this 2,000 up, below this 2,000 down, and I think I'll be happy to see 35,500 hitting on Bank Nifty, because that is a great place to actually bottom out and start a good rally for larger upside. Okay, and if it directly goes above, then ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना होगा, because there is no good secondary test. But if it comes here, it would have completed that secondary test, and then if it starts to rally we can trust, and probably then it can go a long way also towards 41,200, which should be next cycle top. Okay, 1 2 3, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक ऑन बैंक निफ्टी। कल के लिए भी यही लेवल्स होल्ड करेंगे दोस्तों, एंड देन आफ्टर टुमारो सेशन हम वापस से लाइव सेशन लेंगे, एंड विल प्लान फॉर ट्यूसडे। सो दैट्स ऑल ऑन दिस। बहुत सारी और भी टेक्निकलिटीज हैं, धीरे धीरे हम इन सब चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक सम स्टॉक क्वेरीज। आई थिंक मेनी पीपल आर वेटिंग फॉर दैट, सो let me just wind up all these things and let us take some stock queries. Okay, एक्सिस बैंक देखो बेरिश है इस समय,
एक्सिस बैंक में हम शॉर्ट साइड में भी हैं। एक्सिस बैंक में पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर वापस शॉर्ट किया था। सो एक्सिस बैंक में 785 787 जो फ्राइडे का आपका हाई है, दैट रिमेन्स द सीलिंग। अनलेस यू क्रॉस दैट, यू आर गोइंग डाउन। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 733, सेकंड टारगेट हो जाएगा 700। ओके, एंड दिस इज अ बजट वीक, सो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा संभल के काम करना। 785 787 जो आपका ये जो स्लैब है, दैट इज द लास्ट रेजिस्टेंस। ओके, एंड बिलो दिस यू आर वेलकम टिल 700 सॉर्ट ऑफ लेवल। अगर हम इसको भी ब्रीच कर देते हैं तो फिर गॉन। ठीक है, सो ब्रॉडर लेवल्स की हम बातें करेंगे। 785 787 इसको ध्यान में रखना है। एक्साइड इंडस्ट्री, सी एक्साइड वेक्साइड ये सब जो स्टॉक्स हैं, इनमें कुछ खास मोमेंटम इस समय नहीं आने वाला है। एंड दीज स्टॉक्स आर जनरली जस्ट साइडवेज काउंटर, सो यहाँ पे कोई खास व्यू नहीं है। इट्स नीदर एट सपोर्ट नॉर एट रेजिस्टेंस, जस्ट लाइंग समवेयर इन द सेंटर, सो नथिंग कैन बी सेड कंक्लूसिवली। मेरे ख्याल से स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो भी इसमें सेलिंग आएगी। ओके, स्टॉक इज इन अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड। अपसाइड लिमिटेड है 188 192, आई थिंक दैट इज द लास्ट अपसाइड। नेक्स्ट स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया स्टॉक को एक बार चेक करते हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया जो है एक अपसाइड दे रहा है, अर्निंग्स आ रही हैं। आई थिंक लिमिटेड अपसाइड है, 135 131 मैक्सिमम है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक में, एज यू कैन सी वी हैव ब्रोकन लॉन्ग टर्म बेयर फ्लैग इन दिस स्टॉक, एंड मैक्स टू मैक्स अपसाइड दैट कैन कम विल बी लिमिटेड टू समवेयर नियर 135 136। इसके ऊपर बहुत ही मुश्किल है। ओके, एंड ये डाउन ट्रेंड एक चैनल में है। सो इस तरीके से, सो आई थिंक अपसाइड में आपको एग्जिट करना चाहिए एंड मूव टू सम अदर स्टॉक। नेक्स्ट क्वेरी है पिडिलाइट। पिडिलाइट में हम लोअर लेवल्स का वेट करेंगे बाइंग करने के लिए। लास्ट वीक इस स्टॉक को मैंने लिया था, सो आई वुड लाइक टू वेट फॉर मच मच डीपर लेवल्स टू कम फॉर द टाइम बीइंग, फॉर जस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन यानी मंडे के लिए। एक चीज बता देता हूँ दोस्तों कि 2440 2440 ये लेवल को ध्यान देना। अगर ये लेवल होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये लेवल अगर होल्ड कर रहा है तो आप इसको इंट्राडे या मे भी एक दिन के परस्पेक्टिव से लॉन्ग कर सकते हो। 2440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 10-20 रुपए का, दैट्स इट। यू कैन प्ले फॉर 2590 2600, बट अगेन ये सिर्फ मंडे के लिए बता रहा हूँ। ट्यूसडे बजट है, सो इसके बाद आपको नहीं रखना चाहिए। ओके, सो व्हाई आई सेड, बिकॉज ऑन Friday you made an inside bar, right? So there is a good chance that if you hold this slab of 2440, one bounce, okay, should come till 2600. सो देखना, अगर कल कुछ मिला ट्रेड सेटअप तो ये कल के लिए ये बंदा ठीक है। और ओवरऑल मीडियम टर्म में आई थिंक थोड़ा सा और समय मैं इसमें लेना चाहूंगा। वी विल लाइक टू वेट फॉर सम टाइम। हेवल्स इंडिया इज द नेक्स्ट क्वेरी। हेवल्स इंडिया, हेवल्स इंडिया देखिए ब्रेकडाउन हो चुका है 200 डीएमए, बट आई थिंक एक डिमांड जोन अच्छा है 1094 यानी 1100 के आसपास। सो एज ऑफ नाउ मैं इसमें कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। सपोज यू आर लॉन्ग, देन यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस जस्ट at 1080 का एक स्टॉप लॉस आप रखिए। एंड इफ यू गेट any up move, kindly exit just before budget, okay? Because I see breakdown there is a breakdown in this। तो या तो बजट के समय ये और थोड़ा नीचे गिरे और यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनाए, एंड जब ये ऊपर आने लगेगा तब हम बाय करेंगे विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, एंड हमारा टारगेट हो जाएगा 1306। तो मेरा गेम प्लान तो इसमें तैयार है। ओके, मेरा गेम प्लान तैयार है। मेरा गेम प्लान जब मुझे मिलेगा इस तरीके से चैनल स्ट्रक्चर को मैं प्ले करना चाहूंगा। ठीक है, आपका गेम प्लान क्या है आप वो देख लीजिए इस समय। सो हेवल्स, वेरी गुड गेम प्लान आई हैव डिजाइन फॉर हेवल्स। यू शुड सेव दैट चार्ट, आप उसका फोटो लेके रख सकते हैं, काम आ जाएगा। एच सी एल टेक और दोस्तों सुपर चैट नहीं हो रहा है। एच सी एल टेक लाइक का बटन दब नहीं रहा है, सुपर चैट नहीं हो रहा है, शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं हो रहा है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जा रहा है। So HCL Tech, okay, so finally this HCL Tech has retraced much beyond expectation. Now you see, I was waiting for HCL Tech to buy 1230, but our model, our funda of waiting for reversal, that is the key, that is the mantra, okay? And there was no reversal. Every day it went on falling, and now it is falling. सो इसको क्या बेरिश समझा है क्या? ये बुलिश हो जाएगा। कब बुलिश हो जाएगा? थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करो, रिवर्सल आने दो और फिर इसमें हम प्ले करेंगे। ये अगर रिवर्सल होता है तो बहुत ही अच्छा एक रिवर्सल मिलेगा। ओके, 1050 सॉर्ट ऑफ लेवल, बट लेट अस वेट।
इंतजार इसमें करना मेरे ख्याल से फायदे का सौदा होगा, ठीक है। अगर आपने लॉन्ग किया है, नाउ सी इट हैज आल्सो मेड एन इनसाइड बार, राइट? सो इफ tomorrow there is a gap up opening above 1105 on the HCL cash 1105, यानी फ्राइडे के ऊपर की गैप अप होती है, देन आई थिंक ये भागना शुरू करेगा थोड़ा सा 1180 वगैरह तक ये जा सकता है एक दो दिन में, या मे बी सिंगल डे। तो अगर वो ट्रेड खेलना है इनसाइड बार ब्रेकआउट जो मैं सिखाता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे खेलते हैं और उसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। यू कैन प्ले फॉर दैट मूव प्रोवाइडेड इट गैप्स अप अबाउट 1105। एसबीआई देखो बुलिश काउंटर है। पीएसयू बैंक बजट तक मैंने बुलिश रहने को कहा है, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन वेरी नाइस, एंड इट्स अ टिपिकल प्लेस टू शॉर्ट फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। शॉर्ट मत करो, निकल जाओ शॉर्ट से, एंड इट कैन गो अप 570 टारगेट है। ये तो मैं आई थिंक थर्सडे आई हैव अपडेटेड अबाउट दिस एसबीआई, थर्सडे आई हैव अपडेटेड, ठीक है। So 570, 597, these are the targets for SBI। ऑलरेडी अच्छी मूव हो चुकी है, डबल टॉप पे ये ऑब्वियसली रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे समथिंग इट विल डू। 570 is a good level। Do not short unless there is a reversal। Do not short a leading sector, a leading stock leading up to an event। That is very very risky। Dabur is the next query। Dabur India Limited। डाबर इंडिया लिमिटेड पूरी तरीके से जो है चकनाचूर और साफ हो चुका है, पूरी तरीके से बेयर ग्रिप में है, नो लॉन्ग्स। ओके, इफ यू आर शॉर्ट देन बुक नियर 510। हिंडाल्को इज द नेक्स्ट क्वेरी। हिंडाल्को यू हैव शॉर्टेड एट 500 लेवल। ओके, सी हिंडाल्को जो है दोस्त बुलिश काउंटर है, और अगर इसमें ये 460 470 दिखे तो हिंडाल्को मेरे ख्याल से बाई साइड में प्ले करना चाहिए। ओके, सो इफ यू गेट एनी डाउन मूव देन काइंडली बुक। सो मैं हिंडाल्को में बुलिश हूँ दोस्तों। 460 470 इस 10 पॉइंट में आई एम बुलिश। हाउ we should play? See, if we get a dip like this and then we get one good nice reversal candle, we must trade on the long side। okay, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कहानी यहाँ पे डेवलप हो रही है हिंडाल्को में, एंड आई थिंक इसके बाद सीधे ये जाएगा 590, ठीक है। तो वॉच फॉर दिस 460 470। ओके, यहाँ पे वॉच करिए, अगर यहाँ से रिवर्सल बनना शुरू हो हिंडाल्को, मैं समझता हूँ एवरी डे वी मस्ट टेक अ फॉलो अप। सो कल भी आप पूछ सकते हैं बिकॉज इट इज सेटिंग अप वेरी नाइसली। पहले भी मैं हिंडाल्को पे बुलिश था। वंस वी ब्रोक अबाउट दिस 470, मेरा टारगेट ये गैप था जो कि फिल हो चुका है, बट दिस गैप nevertheless this 525, I think that is coming। okay, one trip on the downside and then 525 that is coming। not only that, I think Hindalco is going 590। okay, unless we break below 410, I think Hindalco is sealed at 590। okay, so Hindalco destiny, I think we are going to see it 590। okay, it will have to really crack below 420 uh, to negate this 590। ठीक है, फिलहाल 465 460 465 ये स्लैब को देखेंगे। सो दैट्स द अपडेट कमिंग ऑन हिंडाल्को। ओके, नेक्स्ट है रेन इंडस्ट्रीज। आई कैन सी रेन इंडस्ट्रीज, वोल्टास, एचयूएल वगैरह पूछ के मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म काउंटर है, बने रही है। एंड रेन इंडस्ट्रीज स्टिल मिक्स्ड बैग है ओवरऑल। इस स्टॉक में अगर आपको 200 पे ये स्टॉक मिले इन सम सॉर्ट ऑफ अ पैनिक, इफ यू गेट एट 200 यू कैन अटेम्प्ट अ डायरेक्ट परचेस विद स्टॉप लॉस ऑफ 180। ओके, स्टॉप लॉस ऑफ 180 एंड जस्ट होल्ड इट। 180 के नीचे गया एग्जिट, स्टॉप लॉस सेफ है तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, बट पैनिक में बाय करना नियर 200 sort of level so that you bear less risk, and if it reverses then you will have a very great reward on the upside। It can go 300 provided we save all these stop losses, we save on the Nifty, Bank Nifty and the broader markets। okay, so it's a good high probability low risk setup। कैनरा बैंक 204 पे बाय करने को बोला था, कितने लोगों ने बाय किया, या कितने लोगों को याद है? कैनरा बैंक 204 एंड देन सीधे 250। सो कैनरा बैंक आई एम स्टिल बुलिश। आई थिंक 270 260 शुड बी डन वेरी वेरी इजीली। वहां पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। ओके, एंड वी आर ऑल्सो लीडिंग टू एन इवेंट, सो अपने प्रॉफिट्स को, पोजिशंस को मैनेज करो, हेज करो, कट डाउन करो, ये सब डेफिनेटली करिए। वेदांता वेदांता लिमिटेड, सी मेटल इंडेक्स जो है ना, इस पे मैं डिस्कस करूंगा एक दो दिनों में।
इसमें एक अपडेट है पूरे एनएससी मेटल इंडेक्स पे। वेदांता वेदांता सी, एक चीज वेदांता में है कि वेदांता में ना इनसाइडर भी दबा के हो रहा है, और वेदांता में न्यूज फ्लो भी बना रहेगा। सो वेदांता में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, एक तो ये बात हो गई, और बहुत ही सावधानी के साथ ट्रेड करना। सो सपोज इफ यू आर लॉन्ग हियर, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 313, ठीक है। और कुछ इसमें अभी इस समय नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। इट इज almost at a place where nothing can be said. It is simply moving in a larger triangle, you can say. So unless we break above 340 or we break below 310, nothing can be said about this stock. So uh, इसके हिसाब से आप प्ले करिए 345, 340 for the time being, and 310 on the downside for the time being. Either side, big move will come. Okay. Now, if I check Vedanta on a higher time frame, maybe to get some uh, clues, so I can clearly see that the monthly chart we are, in a large inside with a suppressed and regressed and depressed candle of October, which means that there will be one big up move in this stock till we are holding above this 285. तो ये बात तो है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म 285 वाला लेवल जो है ये दमदार है। अब शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे 340 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो ये पूरी कहानी जो है मैच हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक ये स्टॉक पे रडार पे रखिए, इसमें बड़ी मूव आएगी, आने वाली है कुछ 10, 20, 25 दिनों के बाद। Maybe once the Chinese are back from the lunar holiday, I think that will coincide with one very large swing in all the metal stocks। अभी मैंने कहा ना कि मेटल, सीएनएक्स मेटल पे एक अपडेट है, वो कुछ ऐसा ही था। एनीवेज, नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते। आईजीएल, सी आईजीएल में अभी कोई व्यू नहीं है। आईजीएल मैंने मना भी किया था लॉन्ग मत करना, and IGL has collapsed. So no view as of now. Stock is totally bearish. ये लॉन्ग टर्म काउंटर है अपना, बट अभी कोई एंट्री इसमें हम बना नहीं रहे। ओके, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट प्राइस एंड टाइम टू कम। सो इस समय स्टॉक जो है पूरी तरीके से बेयर ग्रिप में है। नाउ right now stock has tested the 200-day weekly moving average, which is generally a very nice area। सो अगर आप यहाँ पे बायर हैं तो कीप अ स्टॉप लॉस, ओके, से 380, 375 मैक्सिमम। और अगर आप यहाँ पे शॉर्टर हैं तो यू शुड कवर, और अगर आप यहाँ पे सिर्फ वॉचर हैं तो आप अभी वॉच कीजिए। एंड वंस वी बॉटम आउट विद अ वेरी गुड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेग ऑन अपसाइड, एंड नेक्स्ट लेग कैन बी वेरी 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 लार्ज, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करेंगे इस स्टॉक में। ये शानदार स्टॉक है, दमदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म काउंटर है, लॉन्ग टर्म स्टोरी आपके सामने ही है लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पे। So that's the update on IGL. As of now, nothing. If you are holding longs, keep 380 as a stop loss. It's a good bet for technical pullback trade towards 420, 440. ICICI, ICICI बैंक। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है लाइव स्ट्रीम को। ICICI Bank has finally, taken a beating from 830 levels. It has made a bearish engulfing on Friday. I think ICICI still should fall till 766 as of now। इसमें कोई ट्रेड नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। पॉइंट ये है कि ये जो स्लैब था ना, यहाँ पे एक और ट्रिप होना बाकी है। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू रिविजिट दिस एरिया। ओके, अभी कोई ट्रेड नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग। ओके, सो नथिंग कैन बी सेड। Let it come at a strategic location, then we can design something around it। LTI, Person and Two Bro Infotech, LTI। सो LTI इस समय दोस्तों अ, थोड़ा और नीचे आ जाए, somewhere around 5500, 5400, I think that time I will be interested। Why? Because that is the 200-day moving average। Okay, uh, अभी कुछ नहीं, अभी सी इट्स नॉट एट एनी लोकेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट में गो अप, यू विल फील बुलिश, एंड देन अगेन इट में फॉल डाउन एंड यू विल बी लेफ्ट ट्रैप्ड। सो इट्स इन अ नो ट्रेड जोन। ओके, हैविंग सेड दैट, अगर ये 5700 को होल्ड करता है तो एक टेक्निकल पुल बैक 6300 तक इसमें आना चाहिए। नाउ the anatomy of this chart suggests that we had a double top। We almost started to build a head and shoulder, but हुआ नहीं।
बट वी हैव अ डबल टॉप। ओके, सो इस स्टॉक में यहाँ पे अगर ये मुझे मिले तो फिर कुछ बात बनेगी, तब तक कुछ नहीं। ओके, तब तक कुछ नहीं। आईटीसी, सी आईटीसी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आईटीसी में बजट का न्यूज़ आएगा अबाउट सिगरेट्स एंड ऑल। सो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। आईटीसी में एक चीज़ मैं पहले ही बता बता रहा हूँ और पहले बता चुका हूँ, एंड इन वन ऑफ द recent training I explained why ITC will go to 320 holding 180 level. So the same thing I want to reiterate, that ITC if you get in some panic near the 200 slab, इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा लेवल है, आप यहाँ पे कैश में बाय कर सकते हैं। आपको 180 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और स्टॉप लॉस हिट तो भैया निकल जाना, नहीं तो धुआं धुआं हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग अ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ये एक फेज था, देन वी स्पाइक, सिमिलर थिंग वी आर डूइंग हियर, एंड आई थिंक इट विल कंटिन्यू फॉर फ्यू मंथ्स। ओके, and once it has ended, then again there will be spike that should take towards 320, that is the target। ये मार्केट ज्योमेट्री है इस स्टॉक की। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कैश में पैनिक का फायदा उठा सकते हैं, कैन बाय होल्ड फॉर 320 एज अ टारगेट इन मे बी नेक्स्ट 6 मंथ 1 ईयर साइकिल, बट 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 180, 180 देन टोटल एग्जिट। ठीक है, सो दैट्स द अपडेट ऑन आईटीसी। पूना वाला, what is the ticker name? Puna Wala FinCorp Limited. Okay. See, Puna Wala FinCorp Limited, any up move comes निकल जाएगी, very very simple। स्टॉक में फ्रेश अपॉर्चुनिटी की कोई जगह इस समय है नहीं, अर्निंग्स आई थिंक आने वाला है। स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही बैक टू बैक वाइड रेंज कैंडल वगैरह बना चुका है। एनी अप मूव निकल जाओ, एक बार निकलो। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है, फ्यूचर राउंड्स में ये स्टॉक अच्छा मिलेगा, बट फॉर द टाइमिंग इसमें से निकल जाना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। बजट भी है, कुछ ऊपर नीचे हो गया मामला तो सीधे 170 ड्रॉप कर जाएगा। गोदरेज सीपी इज द नेक्स्ट काउंटर। गोदरेज सीपी दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। गोदरेज सीपी अगेन थोड़े दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि सेकेंडरी टेस्ट में स्टॉक ने जो है एक थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया है। सो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर पहले का लॉन्ग ट्रेड्स है तो उसको आप निकल जाइए, गिव सम टाइम। स्टॉक जो है ये ठीक है और इस पे लॉन्ग टर्म एक अपना है स्टोरी, सो दैट लॉन्ग टर्म स्टोरी विल अनफोल्ड, बट थोड़ा सा अभी आउट रहिए इस स्टॉक से, थोड़ा सा आउट रहो। ये स्टॉक में बहुत बड़ा ट्रेड में दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी उसकी तैयारी हमने शुरू की है, बट अभी थोड़ा सा बाहर रहेंगे। ठीक है, on called Container Corporation. Okay, see, Container Corporation suffering. Actually, this stock is bullish, but I don't know why it is not going up. Okay, last time bullish call दिया था 590 600 के भाव से, it went till 700, but I was expecting break above 750, that is not happening। So I don't know why। आइडियली स्टॉक को भागना चाहिए। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है स्टॉक की वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ही लॉफ्टी हो, या हो सकता है कि कुछ इसमें कमियां हो, कुछ प्रॉब्लम हो। लॉजिकली स्पीकिंग स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, 750 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। नाउ फॉर द टाइम बिंग आई थिंक स्टिल ये चार्ट काफ़ी अच्छा है। 590 का बेस बहुत अच्छा है, 590 580 मैक्सिमम 580। अगर ये आप होल्ड कर रहे हैं, 580 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो। इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल, एटलीस्ट ये रेंज है 600 से 700 तो कहीं नहीं गया है, इसमें तो आपको 100 पॉइंट मिल ही जाएगा। ओके, एंड सूनर और लेटर इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट it should break above 750। okay, it should break above 750। so 600 से 700 for the time being you can keep 580 as a stop loss for any long trade। okay, that's all I can say in this stock for the time being। container corp, मारुति में भैया सारे टारगेट हिट हो चुके हैं शॉर्ट टर्म में, 8300 8900। अब अगले जो टारगेट्स आएंगे 11,000 13,000 17,000, ये सब नेक्स्ट राउंड में आएंगे। ठीक है, और वो भी आएंगे, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। सो फैंटास्टिक, 9,000 ऑलमोस्ट 8,500। सो निकल जाओ ना, अभी अभी इसमें से निकल जाइए। ठीक है, एनी अप मूव दैट कम्स 9,200 एक्सेट्रा जस्ट बुक आउट फॉर द टाइमिंग। देयर इज नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर शॉर्ट टर्म traders, and we will enter again। See, this is the monthly long term chart of Maruti, great। Okay,
सो इसमें बहुत अपसाइड्स आएंगी आने वाले कुछ सालों में. सो जस्ट बी पेशेंट एंड फ्रेश ट्रेड्स हम इसमें लेंगे ऑन सम गुड करेक्शन, नॉट नाउ. मारुति, ये व्यू है. बाटा, बाटा इज अगेन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड. सो इस स्टॉक के बारे में हमने डिस्कशन भी किया है. फॉर द टाइमिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर है. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू ब्रेक मच हायर, बट ट्राई टू एग्जिट. ओके, ट्राई टू एग्जिट. अब 1850 से लेके 1750, दैट 100 पॉइंट इज अ स्लैब वेयर यू बाय बाटा. Okay, so on any panic or anything bad news etc, try to accumulate this stock. 1850 से 1750 इस 100 रुपए में इसे आपको accumulate करना चाहिए आने वाले 6-8 महीनों के लिए. फॉर द टाइम बिंग आई थिंक स्टॉक लुक्स वेरी हैवी. वन कैंडल कैन स्पाइक अप. अर्निंग्स आ रही हैं, बुक करिए. विप्रो, नेक्स्ट क्वेरी है विप्रो. विप्रो में अभी तक कोई खास रिवर्सल कैंडल मुझे दिख नहीं रहा है. टेक्निकल पुल बैक होगा 580 जस्ट टू रीटेस्ट दी 200 डे मूविंग एवरेज, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है. ठीक है. सो these stocks have broken very badly. Again, LTI, double top, Wipro, double top, most of the IT companies same structure breakdown हुआ है. So that means there is a committed selling. Generally ये committed selling जो होता है ये बहुत महीनों तक चलता है. Okay, so any pullback that comes, that must be utilized to offload your holdings. ठीक है. So Wipro में I think immediately you are going to see 585 sort of level, which is the pullback. Okay, couple of queries more and then we will wind up for today. We are approaching 1 hour 20 minutes of live streaming. बंधन बैंक में इस समय शॉर्ट बजट है, थोड़ा सा संभालना पड़ेगा वरना बहुत ही बढ़िया लेवल है. आई थिंक थोड़ा सा लेट अस वेट, लेट अस नॉट यू नो लेट अस वेट, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि इसमें तो कभी भी शॉर्ट ट्रेड मिल जाएगा. सो इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड बहुत ही शानदार लेवल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शानदार लेवल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्टॉक पे. सो बंधन बैंक, लेट अस वेट. अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर मिल जाए ना, समवेयर नियर 340 सॉर्ट ऑफ लेवल, then I would like to plan for this, because as you can see from this swing high, a major trend line resistance coming in this slab, 340 to 350 slab में. So ध्यान रखो, अभी शॉर्ट मत करो, ध्यान रखो. Okay, let us wait for a couple of sessions. So that's the update. टाटा पावर अभी आई थिंक लास्ट ट्यूसडे को मैंने लिया था, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा था इस स्टॉक में. And then there was this drop that came. Again we have bounced back showing some sort of inverted head and shoulder. हालांकि मुझे ये पैटर्न इस समय इतना कुछ खास नहीं लग रहा है. What I feel is स्टॉक जो है ना बजट ड्रिवन होगा. ओके, बजट ड्रिवन होगा. और दूसरी जो चीज़ है ना कि ईदर दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज गोइंग ऑन. ओके, जहाँ तक मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन इसमें जो है फुल ऑन चालू है. सो आइडियली क्या होना चाहिए कि एनी न्यू हाई दैट कम्स इट विल बी मेट विद अ सेलिंग टुवर्ड्स 201. ठीक है. सो अगर आप इसमें बुलिश हैं तो नंबर वन point is, the first thing that you should do is trail yourself or put some stop loss. Okay, and if you get profits, try to lock in. If you are a shorter, I think ये यहाँ पे शॉर्ट करना बहुत रिस्की है. हाँ, अगर एकदम यहाँ कहीं मिले तो ठीक है. सो बट स्टिल इफ यू आर अ शॉर्टर देन ऑल्सो कीप अ टाइट स्टॉप लॉस जो कि मोस्ट लाइकली हिट होगा. ओके, आइडियली आई थिंक दिस स्टॉक कैन डू समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस स्टॉक शुड गो अप एंड देन पॉप डाउन. अगर ये यहीं से क्रैक करता है, सपोज ये यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन करता है, ओके, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाएगा. वेरी ट्रिकी काउंटर. ओके, वेरी ट्रिकी काउंटर. whenever there is a, the counter looks tricky, the best place is either extreme resistance or extreme support. Don't venture in the middle. ठीक है. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग समथिंग. सो ये आखिरी स्टॉक होगा और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे. ग्रेट ईस्टर्न इस समय देखिए बेरिश है दोस्त. ओके, अनेबल टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस, लॉट ऑफ मूविंग एवरेजेस आर देयर.
ये स्टॉक थोड़ा अगर एक ब्रेकआउट करे, 350 वगैरह चलना शुरू करे, देन आई थिंक ये स्टॉक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज सारी रेजिस्टेंस तब तक क्रॉस हो जाएंगी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस, और फिर ये स्टॉक इनफैक्ट एक अच्छे स्ट्रक्चर में आ जाएगा। बट जब तक ये नहीं होता, स्टॉक बेरिश है, एंड आई एम अफ्रेड दैट स्टॉक विल डिक्लाइन टुवर्ड्स 250 unless something, you know, good comes from budget, or maybe, you know. So as per technicals, below 350 or 340, stock should go 250. Okay, so that's the update. ITC हो चुका है, मारुति हो चुका है, MCX स्टॉक पे क्वेरी है, MCX स्टॉक। ओके, MCX स्टॉक तो इस समय नो जोन में है। हाँ, हालांकि CTT का न्यूज़ आएगा बजट पे, कुछ ना कुछ और अप डाउन करेगा। मैं समझता हूँ इस समय स्टॉक में ना इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट हालांकि एक चीज़ आप ये कर सकते हो, फॉलिंग वेज स्ट्रक्चर की बात अपनी पहले भी हुई है स्टॉक पे, और वही हो रहा है इस समय। 1650 इज अ गुड रेजिस्टेंस, 1650 इज अ गुड रेजिस्टेंस। आई थिंक अगर ये स्टॉक मुझे 1400 के स्लैब में, यहाँ 1440, 1400 यहाँ अगर मिले, तो कैश मार्केट में कुछ इसमें बाय करके रखना वर्थ होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको बड़ा रखना होगा, 1300 का स्टॉप लॉस रखना होगा। Why I'm saying this is because, you know, this falling wedge structure, if it spikes up, then first target will be straight away 1900 sort of level, and I think it will go further higher towards 2300, thereby meeting this. तो देखो ये गेम है, अब इसको प्ले कैसे करना है आपको डिवाइस करना होगा। तो 1440, 1400 यहाँ पे definitely we should put some money. 1300 is a stop loss. First target is 1850, 19, and second is straight away 23. So that's a big, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं यहाँ पे रेप्लिकेट कर लूँ एट द बॉटम, आई थिंक ब्रॉडली इट विल कम एज अ पैरेलल चैनल, thereby completing the geometry also. Okay, something like this. So looks very interesting, very interesting दोस्त। फोटो लेके रख लेना इसका, आप काम आएगा। So that's it. गोदरेज प्रॉपर्टीज, आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अतुल जी, थैंक यू फॉर योर सुपर चैट। आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन जिसने आज जो है सुपर चैट किया है, सो लेट मी acknowledge you. Thank you so much. Okay. See, I think this stock, Godrej CP and Godrej Properties, very similar structure. So as of now, we should be out from this stock, technically speaking. But in future, okay, a time will come when I will be very bullish on this stock. अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें डैमेज रिपेयर वर्क वगैरह हो रहा है। So if you are stuck at some higher level on any pullback, एक्सेट्रा, जस्ट एग्जिट, एक बार निकल जाओ, खाली कर लाएं इन्वेंट्री, बैड इन्वेंट्री, एंड देन वी विल बिल्ड न्यू इन्वेंट्री। घूम फिर के वही भाव हमें मिलेगा, दैट आई कैन अश्योर यू। ओके, बट राइट नाउ बिकॉज the structure is bullish, sorry, the structure has become bearish again, breaking the 200 EMA, so we have to play by the book as of now. So let us not be brave and courageous at the wrong point. Let us be smart and wise for the time being. So we will exit, and then we'll wait for future. Okay, so I think that's all. So I think that's all. Let us wind up. We are approaching 1 hour 25 minutes of live stream. So thank you so much for joining. Wish you all the best for tomorrow's session. And last but not the least, next training is scheduled on February 12th and 13th. And all those who are interested, you can WhatsApp and you can join. You will be added in our Telegram group. And दोस्तों, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। कमेंट भी कर दीजिए, लाइक डिसलाइक भी कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, एंड प्ले वेरी very cautiously, and let this event go, then you can play aggressively. Thank you so much, take care, good night, jai mata di।